So welcome back. This is lecture 2 of PGBP and this is for assessment year 2022-23. ये CMA intermediate का जून 2022 attempt के लिए ये lectures हो रहे हैं. Okay. So चलिए. So we'll go ahead. Yes, the introductory lecture 1 has already been posted. It was just a short lecture where we talked about what is business, okay, and what are the things which are seen to make a transaction a business transaction, okay. And then profession, we saw that difference between profession and vocation. I'd given you the example of Dabbu uncle, right? He dances and that is his profession. Okay, in profession what happens is you have studied something for a long time, like when you do CMA, CS, CA, okay, right, or MBBS, something like that. But in vocation, you have some natural talent, you're using that for earning income. That becomes your regular source of income. Hobby is not a revenue generating activity, okay. Hobby is just something you do because you like it. For example, say you have gone for a picnic with your office, you can sing well. Just for entertaining everyone, you have just gone up and you've started singing. Okay, that's your hobby, that's why you're doing it. You're not expecting money out of it. Okay, so hobby में पैसा हम expect नहीं करते. ठीक है, वो difference है आपका vocation और hobby में. Vocation में आपका पैसा मिलता है आपको, ठीक है. It's a regular way, उसी से आदमी की जिंदगी कटती है सच कई लोगों की. Okay, one example was Dabbu uncle, जिनका हमने example लिए थे, right? So okay, then after that this is the charging section of PGBP, section 28. ठीक है, तो section 28 ये बताता है कि क्या-क्या चीजें PGBP में chargeable होगी. Okay, so sir, one is income of professional singers will be coming under vocational income or professional income. I think vocational income. Yes, so it is vocational income. So, from business point of view, when you charge tax under PGBP, okay, your business, profession, and vocation, okay, all three are considered together, and all conditions which you apply for taxability is all the same, okay. So you don't differentiate between these three. Differentiation is academic, where business is your normal business activity, profession is you study something for a long time and then you are given a certificate because of which you can do that profession. Vocation is an example of Dabbu uncle which I gave. Here you don't study something, you have some natural talent. So for example, best examples of vocation is Dabbu uncle or mimicry artists are there, right? Comedy Central kind of things. Okay. Though, no, sir, I'm talking about the professional singer, like maybe anyone, Arijit Singh or Sunidhi Chauhan. They people come in vocation. They all come in vocation. Okay, all of them come in vocation. Profession, as defined under PGBP. Okay, as defined under PGBP is where you study something for a long time. You get for doctors, singers, doctors, lawyers, CAs, all those people, they will come under profession. Okay. Then at the end of it, when you are charging someone to tax, okay, whether it is business, profession, or vocation, we apply the same treatment. Okay, just a moment. Someone is joining, because if I click, then the person who is joining then is not able to join, which is why I'm just waiting. This is profession and vocation, which we have discussed. Okay. Then right. So now we are talking about the list which is chargeable to tax under PGBP. ठीक है, PGBP income में क्या-क्या tax होता है, हम उसकी बात कर रहे हैं. सबसे पहले प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ एनी बिजनेस और प्रोफेशन, ये जनरलाइज किया गया है. ओके, किसी भी बिजनेस में आपको प्रॉफिट हो रहा है और गेन हो रहा है, ओके, दैट विल बी चार्जेबल अंडर पीजीबीपी. दिस इज अ जनरलाइज्ड स्टेटमेंट. देन वी सॉ कंपनसेशन टू मैनेजमेंट एजेंसी.
जिसमें अगर कोई आपका मैनेजमेंट एजेंसी है, ठीक है, और वो एजेंसी के टर्म्स मॉडिफाई हो गए हैं या आपका एजेंसी इज टर्मिनेटेड फुल्ली, ओके, तो उसके बदले में जो आपको मिलता है पैसा, ओके, वट एवर यू गेट दैट इज टर्म्ड एज बिजनेस इनकम, ठीक है। इफ यू वुड हैव कंटिन्यूड विथ इन दैट पोजीशन, यू वुड हैव बीन चार्ज्ड अंडर पीजीबीपी, ठीक है, वो लॉजिक है। इसीलिए अभी अगर वो मॉडिफाई हो रहा है या वो बंद हो रहा है, ओके, देन इट बिकम्स देन द कॉम्पेंसेशन विच यू आर गेटिंग, आपको जो कॉम्पेंसेशन मिल रहा है वो पीजीबीपी माना जाता है, ठीक है। चारों पॉइंट्स वही है, ओके। देन नेक्स्ट इज इनकम, इनकम ऑफ अ ट्रेड और प्रोफेशनल एसोसिएशन, ठीक है। तो ये हमने देखे कि ये म्यूचुअल एसोसिएशंस की बात कर रहे हैं, ओके। तो जहां म्यूचुअल एसोसिएशन होते हैं, जैसे सपोज आपके सीए के एसोसिएशन होते हैं, ओके, ओके, सो दिस इज अ म्यूचुअल एसोसिएशन, ठीक है। म्यूचुअल एसोसिएशन देयर विल बी मेनी पीपल, ठीक है, जो मेंबर्स रहेंगे, दे विल पुट मनी एंड दे फाउंड एन एसोसिएशन, ठीक है, एक एसोसिएशन बनाते हैं हम लोग, ठीक है। ये एसोसिएशन बेसिकली क्या करता है, ये इन्हीं के पर्पस के लिए रहता है, ये कुछ प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं रहता है, ओके, इट्स बेसिकली फॉर देयर पर्पस, बट इन केस दे गेट एनी प्रॉफिट, ठीक है, कभी कभी हो जाता है, लेकिन केस ऑफ you are doing something, your aim is not profit but you earn a profit, okay, in case you earn a profit in this, okay, then this money is put back here, so they don't take this home, they are not taking it, okay, it is put back in this fund. So this is the concept of a mutual association. तो जो भी पैसे आते हैं, everything, whatever money comes, it is put back in the association, okay. So so mutual associations, income of mutual associations is not chargeable to tax, it is fully exempt from tax, ठीक है। याद रखना, म्यूचुअल एसोसिएशन का जो इनकम है आपका, इट इज फुल्ली एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, ठीक है। बट यहाँ कभी कभी क्या होता है ना, देन देयर इज समथिंग कॉल्ड स्पेसिफिक सर्विसेज, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि से यू हैव गॉट वेरियस प्रोफेशनल्स, ठीक है। तो मान लीजिए, टेक एन एग्जांपल ऑफ अ लॉयर्स एसोसिएशन और अ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एसोसिएशन, ठीक है। यहाँ बहुत सारे लोग हैं, इसमें मेंबर्स भी है, दे आर ऑल, दिस इज द म्यूचुअल एसोसिएशन, ओके। बट क्योंकि इतने लोग सब साथ में है, आपका पहचान हो ही जाता है, ठीक है। इफ टुमारो यू हैव सम स्मॉल वर्क, ठीक है, कुछ आपको सजेशन लेना है, सम सजेशन यू नीड टू टेक फ्रॉम अ सीए, ठीक है, एंड यू आर इन दिस क्लब, आपके बाजू में सीए बैठा हुआ है, ठीक है। सो नेचुरली, सो से नेक्स्ट टू यू इज अ सीए and you know him well because you are in that club for a long time, so it's natural that you will ask something, okay, right? So agar aisa kuch hota hai, if in this case, okay, if this person is seeking any specific, this is called specific services. Why specific services? Because this service that D is giving to him, it is not a part of the aim of the club, okay, it is outside that. So bhale even this money, if he deposits back with the association also, still it is taxable because it is not a subject matter of the club, ठीक है। So these are called specific services normally. So isko if he is giving a suggestion and he is taking some money, however he puts it after that, whether he puts it here, whether he takes it home or puts it here, but at this point it will be taxable because it's a specific service which is outside the aim of the club, ठीक है। तो यहाँ पे ये बात, इसको हम स्पेसिफिक सर्विसेज बोलते हैं। ये थर्ड पॉइंट जो है वो इसकी टैक्सेबिलिटी की बात कर रहे हैं, ओके, म्यूचुअल एसोसिएशन की बात नहीं कर रहे हैं। म्यूचुअल एसोसिएशन का जो इनकम है, दिस प्रॉफिट इज नॉट टैक्सेबल वंस यू पुट इट हियर, okay, but talking about some private thing between two members, okay, which is outside the subject matter of the club. क्लब के रिक्रिएशन का तो मामला नहीं हुआ ना, ये कुछ अपना टैक्स का सजेशन ले रहा है, तो ये कोई क्लब का सब्जेक्ट मैटर का पार्ट नहीं हुआ, करेक्ट। सो दिस थिंग इज टैक्सेबल इज व्हाट इज बीइंग सेड, थर्ड पॉइंट, ओके।
तो ये है इनकम फ्रॉम रेंडरिंग स्पेसिफिक सर्विसेज टू इट्स मेंबर्स, राइट? इफ इट रेंडरिंग स्पेसिफिक सर्विसेज देन इट इज टैक्सेबल। आफ्टर दिस, ठीक है, इसका मैंने जस्ट थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में स्टार्ट किया था, देन टाइम वाज नॉट इनफ, सो यहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे, मैंने बोला था। ओके, सो टिल पॉइंट 3 इज व्हाट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। सो नाउ वी आर गोइंग अहेड, ओके, विद टुडेज लेक्चर। ठीक है, यहाँ पे हम बात करेंगे, नेक्स्ट इज एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स आर चार्जेबल टू टैक्स एज पीजीबीपी। ठीक है, सेक्शंस यहाँ सब, ये सब याद रखने की जरूरत नहीं, जो भी इंपॉर्टेंट होंगे मैं आपको बता दूंगा। ओके, व्हाटएवर इफ एनीथिंग इज इंपॉर्टेंट आई विल टेल यू, रिमेंबर इट। ठीक है, ये सब जरूरत नहीं है। सेक्शन 28 इज द चार्जिंग सेक्शन, जस्ट रिमेंबर दैट। ओके, कुछ कुछ सेक्शन से बताऊंगा, वो आप याद रखो तो अच्छा है। ठीक है, एज सच मैंने बोला सेक्शंस याद रखना इज नॉट क्रिटिकल टू योर पासिंग। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि आप सेक्शंस याद न रखो तो आप पास नहीं हो गए, ऐसा कुछ नहीं। ओके, so export incentives, okay, these are incentives given on export. So export incentive नाम ही है, आप कुछ एक्सपोर्ट कर रहे हो। ठीक है, दिस इज इंडिया, दिस इज अनदर कंट्री। ठीक है, so if you are exporting something, गवर्नमेंट वांट्स टू प्रमोट एक्सपोर्ट। ठीक है, एक्सपोर्ट को प्रमोट करना है क्योंकि उससे फॉरेन एक्सचेंज मिलता है और ओवरऑल वर्ल्ड में हमारा स्टेटस बढ़ता है। ओके, सो एक्सपोर्ट बढ़ाना है, तो एक्सपोर्ट के लिए आप जो करते हो, गवर्नमेंट गिव्स यू इंसेंटिव। यानी क्या करता है, इन एनी वेज, 3 वेज विल सी, 3-4 वेज, बट जनरल थिंग इज जितना आपका एक्सपेंस लग रहा है, सपोज आपको योर एक्सपेंस इज से 100, सो गवर्नमेंट जस्ट मेक श्योर कि वो आपका 100 की जगह वो 80 हो जाए सपोज। ठीक है, ये कम हो जाए, तो जिससे क्या होगा, जो इससे क्या होगा, जो माल जो बाहर जा रहा है उसका भी वैल्यू, उसका भी कॉस्ट कम हो जाएगा। करेक्ट, सो आवर प्रोडक्ट विल बिकम मोर कॉम्पिटिटिव, दिस इज वन थिंग। और एक ये मकसद है, दूसरा है कि अगर इसका कॉस्ट कम हो रहा है तो इसका भी प्रॉफिट बढ़ेगा। ओके, इसका प्रॉफिट बढ़ेगा, इसका भी सेल्स बढ़ेगा, सो मोर पीपल विल गेट इंटरेस्टेड इन डूइंग एक्सपोर्ट्स। ठीक है, ये इसका मकसद होता है। ठीक है, तो एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स आपके अभी 3 टाइप के होते हैं, 3-4 टाइप के और भी टाइप के होते हैं, अलग अलग तरीके से दिया जाता है, मकसद सेम है सबका। वन इज प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इंपोर्ट लाइसेंस और ड्यूटी एंटाइटलमेंट पासबुक, जिसको डीईपीबी के नाम से जाना जाता है, ड्यूटी एंटाइटलमेंट पासबुक। ओके, बोथ आर डिफरेंट, ये दोनों भी अलग अलग हैं। ओके, वन इज प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इंपोर्ट लाइसेंस। ठीक है, तो अब ये होता है कि ये इंपोर्ट लाइसेंस किसको मिलते हैं, देता है गवर्नमेंट स्पेसिफिकली। देयर आर सम एक्सपोर्टर्स जो रेगुलरली एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है, देयर आर सम एक्सपोर्टर्स हु एक्सपोर्ट रेगुलरली। ठीक है, दिस इज एक्सपोर्टर, दिस इज अनदर कंट्री। ओके, इसको, and this is, let us say, importing country। ठीक है, सो ये एक्सपोर्टर है, ये इंडियन है। ठीक है, दिस इज इंडियन, बाकी दोनों फॉरेन। ओके, दिस इज फॉरेन एंड दिस इज फॉरेन। ठीक, ओके, सो नाउ ये है, यहाँ पे होता ही है कि कई एक्सपोर्टर्स लोग क्या क्या करते हैं, दे इंपोर्ट गुड्स। ठीक है, उनका काम ही होता है इंपोर्ट करते हैं, कि देखिए बहुत सारी कंट्रीज है जो थ्रो अवे प्राइस में डंपिंग करती है। करेक्ट, and many countries which do dumping in throwaway price, so what these people do is वहां से सस्ते में इंपोर्ट करते हैं, ओके, टू इंडिया, उसको डेवलप करते हैं एंड दे एक्सपोर्ट इट टू अनदर फॉरेन कंट्री। ठीक है, ये इनका बिजनेस होता है। ठीक है, तो ऐसे लोगों के लिए, सो दैट सीमलेसली दे कैन इंपोर्ट, दे आर गुड, डूइंग गुड थिंग फॉर अस, राइट, कि सस्ते में बाहर से ले रहे हैं, उसको थोड़ा डेवलप करके और दूसरे कंट्री में एक्सपोर्ट कर दे रहे हैं। ओके, सो इनके लिए व्हाट द गवर्नमेंट डज इज, एक आपको इंपोर्ट लाइसेंस दे देती है गवर्नमेंट। ठीक है, कि आप एक लाइसेंस दे देती है, और लाइसेंस के अंदर यू कैन इंपोर्ट गुड्स।
ठीक है, तो लाइसेंस एक क्या हो जाता है लाइसेंस से, yes sure Nandini, okay, so here no so we are here talking about first part is it was the export incentives, right? First thing about export incentives is you are just reducing the cost of export by any of these methods. Okay, so you are reducing the cost of export. When you are doing that, in the end it is a benefit passed to the businessman, correct? So which is why it is chargeable to tax under PGBP. That is first point. Now we are seeing what are the types of export incentives. So one is profit on sale of import license. Okay, we're talking about export, but this is import license. The reason being, this is the business of some people. Okay, this part is Indian. This is an Indian exporter. Okay, and this is a foreign country, and this is also a foreign country. Okay, basically what some people do is they take they import from a foreign country which is giving some material for very less price. Okay, because many countries dump nowadays, right? So in very less price they procure components and all, they develop it and then they export it to another person. So price they are price competent also because they are getting it at a very low price, and then they are getting foreign exchange as well. Okay, so in a way and in a way you are not stopping import also just because it is a very low price, you are not stopping it as well. Okay, so it helps everyone, you know. So and here, so in this case what happens is government gives such exporters a license, okay, so they can export seamlessly without any problem. Okay, so this point is about selling this license. When say tomorrow this exporter is not continuing with this business, so now this exporter is selling this license itself. ठीक है, ये लाइसेंस ही बेच रहा है, ये जो हमारा लाइसेंस है, कल को सपोज उसको बिजनेस में नहीं रहना है, अब लाइसेंस है तो लाइसेंस को बेच देता है. ठीक है, अब लाइसेंस बेचने में मान लीजिए उसको 5 लाख रुपीस मिले. ठीक है, ओके, सो ये बोल रहा है कि ये 5 लाख रुपीस जो मिले हैं, दिस विल बी बिजनेस इनकम बिकॉज दिस लाइसेंस वाज एडिंग इन हिज बिजनेस, एडिंग हिज बिजनेस, इसीलिए जो पैसे मिले वो दैट विल बी बिजनेस इनकम. दिस 5 लाख is business income. That is what this point is telling. Okay, so this is one point here. Next point is DEPB, duty entitlement passbook. So duty entitlement passbook, it's a similar thing. It's a different scheme actually, which now it is no more there. Okay, DEPB has not been extended now, just it has got theoretical relevance now. Okay, so in duty entitlement passbook, what is done is, now see what the government does is, and see what happens is for import promotion, whenever this person imports, okay, he has to pay customs duty and all that, he has to pay duties, correct, he has to pay taxes for import, correct. And now when he sells it, okay, this time he gets a credit on it. Okay, it is called duty drawback. Okay, and other types also. So basically, say if he pays duty of 100 here, so when he exports, okay, a large part of it he gets back. Okay, just for an assumption, let me say that he gets back 80. Okay, there are different cases, and for that all drawbacks are different. Okay, based on rules and based on the commodity you are exporting. Okay, so this is what is done. So now what happens is, see, this person will be importing several times. ठीक है, क्या करेगा, कई बार साल में इंपोर्ट करेगा. ठीक है, किसी को लैंग्वेज से कोई प्रॉब्लम हो अगर तो आप मेरे को बोल सकते हैं. ठीक है, मैं रिपीट करूंगा बोथ लैंग्वेजेस में. सो यार इसमें जो है, क्या आप कितने बार
एक बिजनेसमैन कितने बार इंपोर्ट करता हूँ, उसका जब बिजनेस ही वो है तो कईयों बार इंपोर्ट करता हूँ, राइट। जितने बार इंपोर्ट करेगा उतने बार जाके ड्रॉबैक क्लेम करेगा, करेक्ट। इन दी एंड वो अपना ट्रैफिक ही बढ़ा रहा है ना। So for this, what the government has said, now government knows कि there are some businessmen who are doing this regularly, तो उनको मालूम है कि ये कितने बार ये ट्रांजैक्शन करता है एक साल में, सपोज, ओके। सो दे गिव हिम अ पासबुक, उनको बोलते हैं भैया ये पासबुक ले लो, आई नो दैट यू आर डूइंग दिस 100 ट्रांजैक्शंस फॉर 1000 टाइम्स इन अ ईयर, ओके। सो 1000 टाइम्स का एक अज्यूम्ड क्रेडिट मैं तुमको दे देता हूँ, आई एम गिविंग यू अ क्रेडिट, ठीक है, टेक अ क्रेडिट, ओके, क्रेडिट ऑफ से 1000। तो उन्होंने क्या किया, क्रेडिट इसमें उन्होंने चढ़ा दिया, एक पासबुक बना दिया, बस दे नो दैट ही इज डूइंग इट मेनी टाइम्स, और ये पासबुक दे दिया उसने, ठीक है। तो अब क्या हुआ, व्हेन he has been given this passbook, okay, now he used to get singular credits earlier, now they have seen that he is doing this job regularly, ठीक है, ये काम रेगुलरली कर रहा है, तो जो भी उसका अज्यूम्ड वैल्यू उनको लगता है जितना इतना तो करता होगा, ठीक है, उतना एक उसको क्रेडिट डाल के एक पासबुक दे दी, दैट इज कॉल्ड डीईपीबी, ठीक है। तो अब व्हेनेवर ही गोस टू एक्सपोर्ट, इसको ही डजंट हैव टू गो थ्रू दैट एंटायर प्रोसीजर, खड़ा करके ना इंपोर्ट जो किया उसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह दिखाना पड़ता है, ओनली देन विल गेट ड्रॉबैक, राइट। उसका चेहरा देख के तो नहीं देंगे, देंगे उसको ड्रॉबैक, राइट। सो नाउ ऑल ही हैज टू टेक ऑल डॉक्यूमेंट्स, या खड़े रहो और ये कराओ, कितने बिजनेसमैन होंगे, राइट। सो जो whoever is doing this work, उनके ऊपर भी लोड बहुत होता है, राइट। इंस्टेड अब ये क्रेडिट है तो इनको मालूम है कि चलो इतना इसका एंटाइटलमेंट है, तो जल्दी जल्दी काम हो जाता है, बस दैट इज द ओनली थिंग, दैट इज इट इज प्रोवाइडिंग लमसम क्रेडिट, बस यही है, ठीक है, और कुछ भी नहीं है। डी इसमें नया है, ठीक है, ये भी क्रेडिट दे रहा है, और यहाँ पे जो मैंने बताया था ड्यूटी ड्रॉबैक का स्कीम, ये भी वही क्रेडिट दे रहा है, ओके। इट्स ओनली फॉर ईज ऑफ बिजनेस ऐसा बनाया गया था डीईपीबी, ओके। सो अब समझिए, सो एक इसमें ये बोल रहा है कि अगर डीईपीबी में आई हैव अ क्रेडिट ऑफ 1000, ठीक है, एंड आई हैव सोल्ड डीईपीबी, मेरा मेरा पासबुक, मैं बिजनेस से बाहर जा रहा हूँ, अब मैं पासबुक भी बेच रहा हूँ, नहीं चाहिए मेरे को, ओके, इसमें 1000 का क्रेडिट है, किसी को बोल रहा हूँ भाई इसमें तो 1000 तक का क्रेडिट है, ओके, सो तुम ले लो और यू पे मी 800 इन रिटर्न, ठीक है। और अगर ऐसा 800 उसको मिला है तो दिस इज बिजनेस इनकम, ये बोल रहा है, बस हमारे ये काम करेंगे, ठीक है, ओके। इसके साथ साथ ड्यूटी ड्रॉबैक भी समझ गया होगा आपको, ड्यूटी ड्रॉबैक है सिंगुलर ट्रांजैक्शन, व्हाट आई टोल्ड यू, ठीक है। ये 100 इंपोर्ट करने में टैक्स दिया उसने, 1 मिनट, इन ड्यूटी ड्रॉबैक व्हाट हैज हैपेंड, ओके, ये नाउ when he imported from here he paid 100 rupees, okay, so when he is exporting it he is getting a drawback of whatever amount, जो भी हो, मैंने assume किया 80, okay, ठीक है, दिस इज ड्यूटी ड्रॉबैक, ठीक है। अब ये जो ड्यूटी ड्रॉबैक उसको मिल रहा है 80 रुपए, ठीक है, ये उसका कॉस्ट है, करेक्ट, उसका कॉस्ट कम किया है गवर्नमेंट ने, राइट, बिकॉज गवर्नमेंट वांट्स टू प्रमोट एक्सपोर्ट, उन्होंने इसका ये 80 रुपया कॉस्ट कम किया है, करेक्ट। इसके ऊपर भी टैक्स लगना चाहिए ना, ये उसका बिजनेस इनकम है, करेक्ट, राइट। आपका डेबिट अगर कम हो रहा है दैट मीन्स योर टोटल नेट प्रॉफिट विल इंक्रीज, करेक्ट। तो यहाँ पे अगर ये मेरा अगर ट्रेडिंग अकाउंट है, ठीक है, दिस इज माय ट्रेडिंग अकाउंट एंड दिस इज माय डेबिट, ठीक है, दिस इज माय क्रेडिट, ओके। इसमें है 100, इसमें है 50, और इन क्रेडिट आई हैव गॉट 500, व्हाट इज माय नेट प्रॉफिट हियर, 500 माइनस 150, ठीक है, 350 इज नेट प्रॉफिट। अगर मैंने आपको ये माफ कर दिया है 50, आपका प्रॉफिट बढ़ गया ना, 400 हो गया, करेक्ट। सो दैट मीन्स दैट 50 शुड बी चार्जेबल एज बिजनेस इनकम, जो मैंने कम किया, राइट, ठीक है। सो इसीलिए दिस इज ऑल्सो बिजनेस इनकम, ठीक है। और ये है, ये तो हो गया, ये दोनों हमने बात कर लिया, ड्यूटी ड्रॉबैक
जस्ट वी हैव डिस्कस्ड, कैश असिस्टेंस इज नथिंग बट ये भी एक ये स्कीम है, गवर्नमेंट डायरेक्टली आपको बोलता है, जैसे इफ नो वन इज विलिंग टू डू अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ एक्सपोर्ट, so government bolta hai you do this export, say if your cost is 1000, okay, we will give you 200 in cash separately, so your cost will be reduced by 800. So this is also an export promotion scheme, that's all. ठीक है, so जितना कम किया है अगेन आपका डेबिट कम हो रहा है, राइट, so this 200 will also be chargeable to tax. वही है ये एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स का फंडा इन ऑल, ठीक है, इन ऑल कहीं ना कहीं आपका exporting cost कम हो रहा है, and because your exporting cost is being reduced, you are getting your income is getting increased, and which is why that part is chargeable to tax as PGBP. ठीक है, next is perquisite from business. Sir, duty drawback हाँ. is taxable for exporter. ड्यूटी ड्रॉबैक जीएस ड्यूटी ड्रॉबैक एक्सपोर्टर की इनकम माना जाता है, उसको टैक्सेबल मानते हैं जो इसको इनपुट मिला है ड्यूटी का। हाँ, क्योंकि देखिए ये जो ड्रॉबैक जो दिया गया है उसको, ड्रॉबैक से क्या हुआ है, उसका एक्सपेंस कम हुआ, ठीक है। अब उसका कॉस्ट सब क्या है एक्चुअली, आप जब ट्रेडिंग अकाउंट में आप सब डेबिट करते हो, ठीक है, यू पुट ऑक्ट्रॉय, यू पुट ऑल इनडायरेक्ट टैक्सेस, सब मिला के आपका प्रोडक्ट का कॉस्ट बनता है, राइट। ऑल इनडायरेक्ट टैक्सेस आर यूज्ड टू गेट द कॉस्ट ऑफ योर प्रोडक्ट, ठीक है। तो अगर इनडायरेक्ट टैक्स कोई आपको कम कर रहा है, देन दैट इज इंक्रीजिंग योर इनकम, राइट, इट अमाउंट्स टू इंक्रीज ऑफ इनकम, तो इसीलिए इट इज एडेड। ओके, सो एक्चुअली आप देखिए ना, ड्यूटी ड्रॉबैक और जो डीईपीबी ना, दे आर एक्चुअली दे वर्क इन द सेम वे। यहाँ पे बस इट इज वी आर टॉकिंग अबाउट सेल ऑफ डीईपीबी, सेल ऑफ लाइसेंस। यहाँ पे कोई सेल नहीं कर रहा है लाइसेंस वगैरह की, इट्स ओनली अ ट्रांजैक्शन, दैट्स ऑल। ओके, सो परक्विजिट फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, ठीक है। इफ नाउ सैलरीज में वी हैव स्टडीड परक्विजिट्स इन डिटेल, ओके। सो सो कल जो है, और कल भी हमारे 3 लेक्चर्स होंगे। थर्ड लेक्चर टुमारो थर्ड लेक्चर, ठीक है, विल बी ऑन सैलरीज, ठीक है। जो थोड़ा सा पार्ट बचा है हम उसको कंप्लीट करेंगे इन द थर्ड लेक्चर। फर्स्ट एंड सेकंड विल बी पीजीबीपी, सो दिस इज थोड़ा सा पार्ट रह गया, अबाउट 25 और 30 मिनट्स का रहेगा। सो एनीवन हु डजंट वांट टू अटेंड सैलरीज, जिनका हो गया है सैलरीज, इफ दे वांट दे कैन स्किप टुमारोज थर्ड लेक्चर, ठीक है। जस्ट मैं बता दिया आपको, जस्ट इन केस। ओके, सो परक्विजिट्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, ठीक है। जब बिजनेस के थ्रू परक्विजिट आता है, ओके, दैट इज आल्सो इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। एग्जांपल इज कार मिला है कोई डीलर को, ओके, ही हैज डन वेरी वेल, या कोई सेल्स एजेंट को सम प्राइस या कुछ मिल गया है, ओके, राइट। सो ऑल दिस, एनीथिंग, एनी परक्विजिट यू रिसीव बिकॉज ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन इज चार्जेबल एज पीजीबीपी, ठीक है। सो ऑलवेज क्या देखना है आपको कि जो परक्विजिट मिला है वो किसी मेन काम के ऊपर मिला होगा, तो वो मेन काम जो है, मेन वर्क, इज दैट बिजनेस और इज दैट योर सैलरी। आपका बिजनेस है कि सैलरी है, ये आपको देखना पड़ेगा। बट फॉल्स अंडर बिजनेस, ठीक है, इट विल बी परक्विजिट्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। नेक्स्ट इज रेम्यूनरेशन टू पार्टनर, ठीक है। अब पार्टनर जो है, रेम्यूनरेशन टू पार्टनर यानी सैलरी वैलरी जो मिलता है पार्टनर को, वो है, ठीक है। नाउ सी, पार्टनर्स क्या करते हैं? पार्टनर्स बिजनेस करते हैं, करेक्ट। और बिजनेस करने से क्या मिलता है उनको? प्रॉफिट मिलता है। प्रॉफिट, दे गेट अ प्रॉफिट, लेट अस से ऑफ 10,000, 10,000 प्रॉफिट मिला, आपने बिजनेस की प्रॉफिट मिला। आप उसको कैसे भी डिवाइड कीजिए, आप सैलरी नाम दो, तो बोनस नाम दो, ओके ओके, अलाउंस ही नाम दे दो, नाम देने में क्या है, ओके, एनी नेम यू पुट, बट इफ इट इज एन अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट ऑफ योर पार्टनरशिप फर्म, देन इट विल बी टैक्सेबल एज पीजीबीपी। यहाँ अगर मैंने सैलरी
5000 डाल दिया, जस्ट बिकॉज आई पुट सैलरी, मेरे को डिडक्शन नहीं मिलेगा। ओके, एंड बोनस आई पुट 2000, ठीक है, कुछ अलाउंसेस आई पुट 3000। इस तरह से मैंने इसको बाइफरकेट किया है, ठीक है। इंडियन व्हाट इज दिस? दिस इज प्रॉफिट ऑफ बिजनेस इनकम, प्रॉफिट ऑफ पार्टनरशिप फर्म, ठीक है। सो एनी अप्रोप्रिएशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, याद रखना, इट विल बी रेम्युनरेशन, बोनस, परक्विजिट, सैलरी, कुछ भी नाम वो दे दो, ठीक है। इफ इट इज एन अप्रोप्रिएशन ऑफ हिज फर्म इनकम, इट विल बी टैक्सेबल एज पीजीबीपी, ठीक है। So, ये जो चीजें हैं, अमाउंट रिसीव्ड अंडर सर्टेन एग्रीमेंट, दिस इज बेसिकली अमाउंट फॉर नॉट कैरिंग आउट सम एक्टिविटीज है, ठीक है। सो मेनी टाइम्स जो होते हैं कि you give an amount to certain people, okay, so that they should not carry out something, okay, should not carry out business or profession, so that becomes business income. तो यहाँ पे बेस्ट एग्जांपल आप ये देखो कि एक एरिया है जहाँ पे यू हैव व्हाट, रेनॉल्ड्स पेन, ठीक है। इफ देयर इज रेनॉल्ड्स पेन which is very much sought after in a particular area, okay, now Rotomac has come in that area, okay. Now Reynolds has seen that, okay, now if Rotomac has come, they feel that whatever market they take, I will lose 1 crore, okay. So instead they went to Rotomac and they said that we are giving you 50 lakhs, let's sign an agreement that you will not work in this area for 5 years, ठीक है, something like that, okay. So in this case, जो अब ये Rotomac ने जो पैसे लिया है, this will be business income, this is what they are saying, ठीक है। So for not carrying out any activity, it is quite prevalent, business में होता रहता है छोटा बहुत, सबके अपने अपने एरिया होते हैं, okay. So ठीक है, so they work within that, so this is not carrying out any activity. दूसरा है नॉट शेयरिंग एनी नो हाउ, पेटेंट, कॉपीराइट। आपने किसी से कोई कॉपीराइट या पेटेंट लिया है और यू आर डूइंग एंटायर बिजनेस बेस्ड ऑन दैट पेटेंट। नाउ यू नो दैट इफ ही सेल्स इट टू समवन एल्स, then you will have competitors. So you are now, apart from giving him the normal patent amount, you are signing another agreement that you don't give this to anyone else. For that, we will give you this much amount. If he agrees and signs, okay, then that will be business income. So these are basically, you can say, negative agreements. You can call them as negative agreements, where you are stopping someone. Okay, in business you have to do it many times, but it is, जब तक वो लीगल दायरे में के अंदर होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, या आप फोर्स नहीं कर रहे हो किसी को, ठीक है। इट्स नॉट कोअर्शन एज सच। आप बोल रहे हो कि भाई तुमको इतना मिलेगा, मैं तुमको सीधा इतना दे देता हूँ, ठीक है। इफ इट अपीयर्स टू बी गुड फॉर देम, दे विल टेक इट, ओके। सो दिस इज बेसिकली फॉर स्टॉपिंग एनीवन फ्रॉम कैरिंग आउट समथिंग, ठीक है। देन इसमें एक्सेप्शंस है, ओके। वन इज exceptions is which will not be taxable under business income but may be in some other heads. So one is see compensation from multilateral fund of Montreal Protocol. ये होता है कि there are certain areas where the UN gives you some money if you stop using certain material, okay. कुछ मटेरियल आप यूज नहीं करोगे तो यूएन गिव्स यू सम मनी, ओके। सो अब यूएन से जो पैसा मिलता है वो आपको, इट इज एग्जेम्प्ट, व्हिच इज व्हाई इट इज नॉट बिजनेस इनकम। सो दिस इज स्पेसिफिकली फॉर सब्सटेंसेस डिप्लीटिंग ओजोन लेयर। कुछ हार्मफुल है, अगर कंपनी ने मान लिया ठीक है मैं नहीं करूंगा, तो उसके लिए कॉस्ट लगेगा ना, उसको दे विल हैव अ कॉस्ट ऑन दैट, उसके लिए दे गिव सम कंपनसेशन। इफ यूएन गिव्स इट, इट इज नॉट टैक्सेबल, ठीक है। सो यू कैन नाउ जॉइन बैक अगेन immediately. Please join back and we'll continue, okay. Same link, join back again.